السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا دوست امجد خان آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تو آج ہم تذکرہ کرنے والے ہیں جنگ بدر، جو ہمارے نبی اور صحابیوں نے مشرک مکہ سے اپنے دفاع کے لیے لڑی تھی، جس میں ہمارے صحابیوں کی تعداد مشرک مکہ کے مقابلے بہت تھوڑی تھی۔ اور بات کرتے ہیں جنگ بدر، اس کے کیا اسباب تھے، تو آئیے اسے تفصیل سے جانتے ہیں۔ قریش مکہ نے مدینہ کی اس اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا اس لیے بھی فیصلہ کیا کہ وہ راستہ جو مکہ سے ملک شام کی طرف جاتا تھا مسلمانوں کی زد میں تھا۔ اس راستے کی تجارت سے مکہ والے سالانہ لاکھوں اشرفیاں کماتے تھے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ بنو ویش کے مشہور سردار سعید بن معاذ جب طواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر انہیں روکا اور کہا، تم ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکہ میں طواف کرنے دیں گے۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سن کر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ اہم تر ہے، یعنی مدینہ کے پاس سے تمہارا راستہ روک دوں گا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے اسباب کی۔ 2 ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہ کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی مارا گیا اور 2 گرفتار ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر ناپسندگی کا اظہار فرمایا۔ جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا گیا۔ اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، کیونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی تھی جس میں جنگ و جدال حرام تھا۔ اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف عرب کے قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی اور عمر بن الحضرمی کے پریوار والوں کو بھی مدینہ کے خلاف حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ تیسرا اسباب، مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چارگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چوتھا اسباب یہ تھا، قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاری شروع کر دی اور افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے آس پاس کے قبیلوں سے معاہدہ کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ ملک شام بھیجا جائے گا اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے وقف ہوگا۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں کشیدگی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ جب ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کر مکہ سے ایک امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگ دار رومال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا، ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھے چلے آ رہے ہیں، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سردار نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام تمام کر کے ہی واپس گھر جائیں گے، اور قریش لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں
कुरैशी लश्कर की आमद की इत्तला मिली तो आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिसे मशावरत बुलवाई और खतरे से निपटने के लिए तजावीज़ तलब फरमाई। मुहाजिरीन ने जानिसारी का यकीन दिलाया। आपने दोबारा मशवरा तलब किया और मशवरे के बाद मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म हुआ। मुसलमानों के ज़ौक़ शहादत का ये आलम था कि एक नौउम्र सहाबी हजरत अमीर बिन अबी वक्कास इस ख्याल से छुपते फिरते थे कि कहीं कम उम्र होने की वजह से वापस न भेज दे। इसके बावजूद मुजाहिदीन की कुल तादाद 313 से ज्यादा न हो सकी। ये लश्कर इस शान से मैदान कारजार की तरफ बढ़ रहा था कि किसी के पास लड़ने के लिए पूरे हथियार भी न थे। पूरे लश्कर के पास सिर्फ 70 ऊंट और 2 घोड़े थे जिन पर बारी बारी से सवारी करते थे। मुकाम बदर पर पहुंचकर एक चश्मे के करीब ये मुख्तसर सा लश्कर खैमजन हो गया। मुकाबले पर 3 गुना से ज्यादा लश्कर था। 1000 कुरैशी जवान जिसमें से अक्सर सर से पांव तक आहनी लिबास में मौजूद थे। वो इस ख्याल से बदमस्त थे कि वो सुबह होते ही उन मुट्ठी भर फाका कशों का खात्मा कर देंगे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। रात भर कुरैश लश्कर अय्यासी और बदमस्ती का शिकार रहा। खुदा के नबी ने खुदा के हुजूर रात भर आहवजारी में गुजारी और कादिर मुतलक ने फतह की बशारत दे दी। जिस तरफ मुसलमानों का पड़ाव था उस तरफ पानी की कमी थी और रेत से मुसलमानों के घोड़ों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी, लेकिन खुदावंद ताला ने बारान रहमत से मुसलमानों की ये दोनों दिक्कतें दूर कर दी। रेत जम गई और कुरैशी लश्कर के पड़ाव वाली चिकनी मिट्टी पर कीचड़ पैदा हो गई। 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी 624 ईस्वी में फजर के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की तलकीन की। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उन्होंने सफ बंदी करके कुरैश लश्कर को शिकस्त देने आहनी अज़म लेकर मैदान की तरफ चले। कुरैशी लश्कर तकब्बुर व गुरूर से बदमस्त नस्ली तफाखर के नारे लगाता हुआ सामने मौजूद था। मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश का वक्त था, इसलिए कि अपने ही भाई सामने खड़े थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बेटे अब्दुर रहमान से, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बात उतबा से मुकाबला करना था। अरब के दस्तूर के मुताबिक पहले इनफरादी मुकाबले हुए। सबसे पहले उमर बिन अल हजरमी का भाई आमिर मैदान में निकला और मद मुकाबिल तलब किया। मुकाबले पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक गुलाम बाहर निकला और उन्होंने मुकाबले में उस मगरूर का खात्मा कर दिया जो अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए आया था। उसके बाद उतबा बिन रबिया, उसका भाई शाइबा और उसका बेटा वलीद बिन उतबा मैदान में निकले और मुबारिज तलब किए। 3 अंसारी साहबा मैदान में निकले, लेकिन उन तीनों ने उनसे लड़ने से इनकार कर दिया। चुनाचे आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु मुकाबले के लिए निकले। मगरूर कुरैशी सरदार ने उनके नाम पूछे और कहा, हाँ तुम हमारे हम पल्ला हो, और मुकाबला शुरू हुआ। चंद लम्हों में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाइबा को जहन्नुम रसीद कर दिया और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वलीद का काम तमाम कर दिया और लश्कर इस्लाम से तकबीर की आवाज़ बुलंद हुई। इस दौरान उतबा और हजरत उबैदा ने एक दूसरे पर भरपूर वार की और दोनों जख्मी होकर गिर पड़े। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मद मुकाबिल से फारिग होकर उतबा की तरफ लप और एक ही ज़रब से उसका काम तमाम कर दिया। कुरैश ने अपने नामूर सरदारों को यूं कटते देखा तो लश्कर इस्लाम पर हमला कर दिया। इस गजवा में मोमिन के जोश जिहाद का ये हाल था कि एक साहबी उमर बिन जाम खजूरें खा रहे थे। उन्होंने हुजूर अकरम का ऐलान सुना। ऐलान ये था, आज के दिन जो शख्स सब्र व इस्तकामत से लड़ेगा और पीठ फेर कर न भागेगा वो यकीनन जन्नत में जाएगा। ये सुना तो खजूरें फेंक दी और फरमाया, वाह वाह, मेरे और जन्नत के दरमियान बस इतना वक्फा है कि ये लोग मुझे कत्ल कर दें। ये कहकर इतनी बहादुरी से लड़े कि शहीद हो गए और चंद लम्हों में जन्नत का फासला तय कर लिया। मैदान कारजार खूब गर्म था। कुरैश के मगरूर आहान पोश लोहे के लिबास समेत कट कट कर गिर रहे थे। मुसलमान भी खुददाद शजाअत दे रहे थे। इस हंगामे में अंसार के 2 कम उम्र के बच्चे, एक हजरत
माज बिन उम्र बिन जमो और दूसरे हजरत माज बिन अफर हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन औफ के पास गए और उनमें से एक ने कहा कि चचा, आप अबू जहल को पहचानते हो? वो कहाँ है? हमने सुना है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गाली बकता है। कसम है मुझे उस पाकज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं उसको देख लूं तो उस वक्त तक उससे जुदा ना होऊंगा जब तक कि वो मर न जाए या मैं शहीद ना हो जाऊं। तफाक से अबू जहल का गुजर सामने से हुआ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। इशारा पाते ही ये दोनों नन्हे मुजाहिद अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ भागी। वो घोड़े पर सवार था और ये दोनों पैदल। जाते ही इन दोनों में से एक ने घोड़े पर और दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला कर दिया। घोड़ा और अबू जहल दोनों गिर पड़े। अबू जहल ने माज बिन उम्र के कंधे पर वार किया और उनका हाथ लटक गया। उस बाहिम्मत नौजवान ने बाजू को रास्ते में हायल होते हुए देखा तो पाँव के नीचे रखकर एक ही झटके में अपने हाथ को जिस्म से अलग कर दिया और एक ही हाथ से अपने शिकार पर हमला कर दिया। इतने में माज बिन अफरा के भाई हजरत माऊज वहां पहुंचे और उन्होंने अबू जहल को ठंडा कर दिया और अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। इस मैदान बदर में अबू जहल के अलावा उमैया बिन खलफ, जिसने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर बेपनाह जुल्म ढाए थे, और अबू बख्तरी जैसे अहम सरदारान कुरैश भी मारे गए और ये मगरूर लश्कर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दी थी और दुनिया ने भी देख लिया कि फतह व शिकस्त में मादी कुव्वत से ज्यादा रूहानी कुव्वत का दखल होता है। इस मुकाबले में मुसलमानों के कुल 14 आदमी शहीद हुए और कुरैश के 70 आदमी मारे गए, जिसमें से 36 हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों कत्ल हुए। 70 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। कुरैश मक्तूलैन में यानी कुरैश के मरने वालों में तकरीबन उनके तमाम नामूर सरदार शामिल थे और गिरफ्तार होने वालों में भी उनके मुआजिजीन में से थे। मसलन हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर के चचा, अकील बिन अबी तालिब, असूद बिन आमिर, साहिल बिन अमरू और अब्दुल्लाह बिन जमा वगैरह। अब बात करते हैं कि हमारे सहाबियों का सलूक कैदियों के साथ कैसा था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को आराम से रखने का हुक्म दिया। सहाबाए किराम ने अपने कायद के फरमान पर इस हद तक अमल किया कि खुद खजूरें खाकर कैदियों को खाना खिलाया। सहाबाए किराम से उनके बारे में मशवरा तलब किया गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कत्ल करके दुश्मन की कुव्वत तोड़ने की तजवीज़ पेश की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिदिया लेकर छोड़ देने का मशवरा दिया। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से इत्तफाक करते हुए कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया। जो कैदी गुर्बत की वजह से फिदिया अदा नहीं कर सके और पढ़े लिखे थे तो उन्हें 10 मुसलमानों को पढ़ाना लिखाना सिखाने पर रिहा कर दिया गया। कैदी सहाबाए किराम के हसन व सुलूक से इस हद तक मुतासिर हुए कि उनमें से बहुत से इस्लाम में दाखिल हो गए, जिनमें से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अकील बिन अबू तालिब शामिल थे। इसी के साथ हमारा आज का तज़किरा मुकम्मल हुआ और मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।